ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ حویلی کی وسیع و عریض راہداری میں صبح کی دھوپ اپنی سنہری کرنیں بکھیر رہی تھی۔ لمبے ستونوں پر کھڑی یہ شاندار عمارت اپنی شان و شوکت کا منہ بولتی تصویر تھی۔ پورے گاؤں میں ان کی حیثیت کا ڈنکا تھا۔ ہر شخص ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور رہتا۔ فرہاد بلوچ اس گھر کا چشم و چراغ اور گاؤں کا اکلوتا سردار اپنے کمرے میں کھڑا آئینے کے سامنے تیار ہو رہا تھا۔ اس کے تن پر دودیا سفید شلوار قمیض تھی اور گلے میں بے حد نفاست سے سیاہ چادر رکھی ہوئی تھی جو اس کے مردانہ وجاہت میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ چوڑی پیشانی، گہری آنکھیں، ستواں ناک اور مضبوط جبڑا، وہ دکھنے میں بلا کا حسین تھا۔ قد کاٹ ایسا کہ کوئی بھی اس کا گرویدہ ہو جاتا۔ وہ مسکراتا بہت کم تھا اور یہی وجہ تھی کہ ہر شخص اسے بات کرتے ہوئے گھبراتا تھا۔ تیار ہو کر اس نے ایک آخری بار خود کو آئینے میں دیکھا، پھر اپنی چادر کو ایک شان سے کندھے پر ڈال کر کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے قدموں کی آواز طویل راہداری میں گونج رہی تھی۔ نیچے لاؤنج میں کبیر بلوچ اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھے تھے۔ چوڑے شانے، روب دار آنکھیں اور گھنی مونچھیں، انہیں دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ فرہاد انہی پر گیا ہے۔ ان کے برابر میں سفیان بلوچ بیٹھے تھے جو نسبتاً نرم مزاج مگر اتنی ہی تیز نگاہوں والے شخص تھے۔ دونوں بھائی اپنی زندگی کے کئی سال قبائلی سیاست میں گزار چکے تھے اور ان کی شخصیت سے وہی سختی جھلکتی تھی جو فرہاد کو ورثے میں ملی تھی۔ فرہاد نے کمرے میں قدم رکھا تو کبیر بلوچ نے اسے سر تا پیر دیکھا، پھر ہلکی تیوری چڑھا کر بولے، کہاں کی تیاری ہے؟ آج تو پنچایت نہیں ہے۔ فرہاد نے خاموشی سے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر ایک نگاہ ڈالی، پھر دھیمے مگر پرسکون لہجے میں بولا، گاؤں کے کالج جا رہا ہوں، وہاں کا دورہ ہے۔ سفیان بلوچ نے ذرا چونک کر کہا، کالج؟ تم؟ فرہاد نے ایک نظر اپنے چاچو کو دیکھا اور ہلکا سا مسکرایا۔ ہاں چاچو۔ کبیر بلوچ نے کرسی پر پشت جماتے ہوئے سر جھٹکا۔ عجیب بات ہے، ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ بلوچ سردار کالجوں کے چکر لگاتے ہیں۔ فرہاد نے اپنی چادر کو درست کرتے جواب دیا، وقت بدل رہا ہے بابا، کچھ چیزیں ہمیں بھی بدلنی ہوں گی۔ کبیر بلوچ نے ایک گہرا سانس لیا اور سفیان کی طرف دیکھا، جیسے دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی بات کہتی ہو، پھر بولے، ہاں مگر یاد رکھنا، ہم بلوچ اپنی زمین، اپنے اصول اور اپنی روایات نہیں چھوڑتے، اور بے وجہ تم نے ان لڑکیوں کے کالج میں اتنا پیسہ لگایا ہے۔ فرہاد نے سر جھکایا، یہ بات مجھے آپ سے بہتر کون سمجھا سکتا ہے، اور رہی لڑکیوں کے کالج کی بات، تو لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے شعور ضروری ہے۔ اس کی بات سن کر سفیان بلوچ نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل درست کہا، اور ہاں بس دیکھ لینا کالج والے تمہاری شکل دیکھ کر ڈر نہ جائیں۔ فرہاد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ڈر تو لوگ ویسے بھی جاتے ہیں چاچو، کیا کریں، قسمت میں روب لکھا ہے۔ کبیر بلوچ نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے سر ازبات میں ہلایا، جیسے بیٹے کے جواب سے مطمئن ہو گئے ہوں۔ جاؤ مگر وقت ضائع نہیں کرنا، سرداروں کے پاس فضول بیٹھنے کا وقت نہیں ہوتا۔ فرہاد نے گردن ہلائی اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ جیسے ہی وہ حویلی کے دروازے سے نکلا، فوراً ہی تمام گارڈز حرکت میں آ گئے اور فوراً گاڑیاں تیار ہوئی تھیں۔ وہ کم بولنے کا عادی تھا، اسی لیے جلد سے جلد تمام کام اس کے کہنے سے پہلے ہی کر دیے جاتے۔ کالج کی پرانی عمارت گاؤں کے وسط میں کھڑی تھی۔ باہر درختوں کی قطار تھی اور اندر داخل ہوتے ہی صحن میں لڑکیوں کے گروہ مختلف باتوں میں مصروف تھے۔ کچھ کتابیں ہاتھ میں لیے بینچوں پر بیٹھی تھی، کچھ دروازوں کے قریب کھڑی ہنسی مذاق کر رہی تھی، اور کچھ اپنی ہم جماعتوں کے ساتھ دھیمی آواز میں بات کر رہی تھی۔ جیسے ہی گاڑی صحن میں آئی، پورا گراؤنڈ سناٹے کی زد میں آ گیا۔ ایک سیاہ چادر میں ملبوس قد آور شخصیت گاڑی سے باہر نکلا تو ماحول پر یکدم سنجیدگی طاری ہو گئی۔ فرید نے ایک تائرانہ نگاہ پورے گراؤنڈ پر ڈالی تھی اور پھر آفس کی طرف روانہ ہو گیا۔ پرنسپل آفس میں داخل ہوتے ہی ماحول میں مزید سکوت چھا گیا۔
ऑफिस छोटा मगर साफ सुथरा था। दीवार पर चंद सरकारी नोटिस और एक तरफ लाइब्रेरी का शेल्फ था। जैसे ही प्रिंसिपल ने दरवाजे पर खड़े फरहाद बलोच को देखा, वो फौरन खड़े हो गए। अरे सरदार साहब, प्रिंसिपल ने इज्जत से कहा और फौरन कुर्सी पेश की। बैठें, आपने पहले इत्तला दी होती तो हम बेहतर इंतजाम करते। फरहाद ने कुर्सी की तरफ एक नजर डाली मगर बैठने के बजाय सीधा कहा, नहीं, मुझे ज्यादा वक्त जाया नहीं करना। मैं कॉलेज का दौरा करना चाहता हूं, खासतौर पर क्लासरूम्स देखना है। प्रिंसिपल ने फौरन सर हिलाया। जी बिल्कुल, आइए, मैं आपको लिए चलता हूं। फरहाद ने चादर को कंधे पर दुरुस्त किया और प्रिंसिपल के हमराह चल पड़ा। वो वाकई वक्त जाया नहीं कर सकता था। उसके जिम्मे बहुत काम था जिनको निपटाना उसकी सबसे पहली ड्यूटी थी। वो क्लासरूम में दाखिल हुआ तो लड़कियों के सर हल्की सी झिझक के साथ झुक गए। कुछ ने हैरत भरी निगाहों से उस दबंग शख्सियत को देखा तो कुछ अपनी निशिस्तों पर फौरन सीधी हो गई। पहली क्लास में कदम रखते ही सभी तालबात फौरन खड़ी हो गई। उस्ताद ने भी घबराहट में जल्दी से सलाम किया। फरहाद ने नजर दौड़ाई। कुछ लड़कियां संजीदगी से खड़ी थीं, कुछ आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को कोहनियां मार रही थीं। वो खामोशी से कमरे का जायजा लेने के बाद बाहर निकल आया। अगली क्लास में दाखिल हुआ तो मंजर कदरे मुख्तलिफ था। यहाँ एक ग्रुप की सरगोशियां जारी थीं, जैसे कोई मजाहिया बात चल रही हो। लड़कियां एक दूसरे की हंसी दबाती दिखाई दी, मगर फरहाद बलोच की मौजूदगी ने सबको साकित कर दिया। उस्ताद ने एहतराम से उनका इस्तकबाल किया, मगर फरहाद एक नज़र डालकर बगैर कुछ कहे बाहर निकल आया। तीसरी क्लास में दाखिल होते ही उसकी निगाह फौरन एक अजीब मंजर पर जा ठहरी। आखिरी कतार में एक लड़की अपनी किताबों पर सर रखे गहरी नींद में थी। उसके सुनहरी माइल बाल बिखरे हुए थे और वो ख्वाबे खरगोश में ऐसे गुम थी जैसे उसे दुनिया से कोई लेना देना ना हो, और यही बेफिक्री उसको बेहद बुरी लगती थी। फरहाद की पेशानी पर बल पड़ गए, उसके लब सख्ती से भेंच गए। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो इस लड़की को अभी के अभी कॉलेज से रेस्टिगेट कर दे। इसलिए तो उसने गर्ल्स कॉलेज तामीर नहीं करवाया था कि यहाँ पढ़ने आने वाली लड़कियां नींद के मजे लें। अपने बाप के मुखालिफ गया था। गांव के मर्दों के साथ उसने काफी लंबी बहस की थी। उसके बाद ये गर्ल्स कॉलेज तामीर करने की इजाजत मिली थी, और ऐसे कैसे वह अपनी इस मेहनत पर पानी फिरते देख सकता था। प्रिंसिपल ने फौरन आहिस्ता से खंगार कर उस्ताद को मुतवज्जो किया। उस्ताद ने घबरा कर हाथ आगे बढ़ाया और मेज बजाई। उठो, ये क्या हरकत है? लड़की ने सुस्ती से सर उठाया, नींद भरी आंखों को बमुश्किल खोला और बेजारी से आसपास देखा, मगर जैसे ही उसकी निगाह फरहाद बलोच पर पड़ी, उसके चेहरे पर कुछ हैरानी बिखर गई। फरहाद की सख्त नजरें उस पर जमी हुई थी। उसकी नजरों का ताकुब महसूस करके पूरी क्लास में सन्नाटा था, जैसे वक्त रुक गया हो। सभी लड़कियां साकित दुम साधे इस शख्स को देख रही थी। उसकी मौजूदगी ने लम्हे में माहौल में हैबत तारी कर दी थी, और अब अपने दोनों हाथों को मुट्ठी में दबाए खामोशी से नजरें झुकाए बैठी थी। वो आहिस्ता मगर मजबूत कदमों से आगे बढ़ा। उसके बूट फर्श पर गूंज पैदा कर रहे थे, जैसे किसी आंधी के आसार हो। उठो, उसकी भारी आवाज कमरे में गूंजी। माहिन के कंधे बेख्तियार हिल गए, मगर वो वहीं बैठी रही, जैसे अपने अंदर हिम्मत जमा कर रही हो। फरहाद का जब जवाब दे गया। मैंने कहा उठो। अब की बार उसकी आवाज बिजली की तरह क्लास के माहौल पर कड़की। माहिन ने गहरी सांस ली, अपने स्याह दुपट्टे को दुरुस्त किया और आहिस्ता से खड़ी हो गई। उसकी आंखों में नींद की धुंधली परछाइयां अब भी थीं, मगर वो पूरी तरह होश में थी। फरहाद ने उसे सर सपांव देखा, फिर गुस्से से इस्तेज़ाइया मुस्कुराया। ये है तुम्हारी मेहनत, ये है तालीम हासिल करने का अंदाज। हुकूमत की सीट मिली और तुम यहां बैठकर नींद पूरी कर रही हो। माहिन खामोश रही। उसके हाथ एक दूसरे पर गिरफ्त मजबूत कर चुके थे, मगर उसके चेहरे पर एक भी रंग नहीं बदला। फरहाद ने मज़ीद 2 कदम करीब होकर सख्त लहजे में कहा, क्या तुम्हें मालूम भी है कि इस सीट के लिए कितनी लड़कियां इंतजार में होंगी? कितनी मेहनत करने वाली बच्चियां इस उम्मीद में बैठी होंगी कि उन्हें भी मौका मिले, और तुम जो इस जगह पर हो
तुम्हें इसकी कदर ही नहीं। माही ने आहिस्ता से आंखें उठाईं मगर कुछ कहने की हिम्मत ना की। जवाब दो। फरहाद का सब्र खत्म हो चुका था। क्लास में बैठी सब लड़कियां सांस रोके ये मंजर देख रही थी। कोई सर झुकाए बैठी थी, कोई कनखियों से माहीन की तरफ देख रही थी, तो कोई ये सोच रही थी कि अब आगे क्या होगा। माही ने एक पल को फरहाद की आंखों में देखा, फिर आहिस्ता मगर मजबूत आवाज में बोली, मेरी नीयत पर शक मत करें सरदार साहब। फरहाद का गुस्सा मजीद भड़क उठा। नीयत का क्या ताल्लुक है जब तुम क्लास में सोने के लिए आती हो? अगर यही करना था तो किसी और को मौका दे देती जो वाकई कुछ बनने के लिए यहां आई हो। माहीन ने लब भींच लिए मगर उसके चेहरे पर कोई नदामत या वजाहत नहीं थी। फरहाद ने सख्त लहजे में कहा, तालीम का हक हर उस शख्स को मिलना चाहिए जो उसकी कदर करे। जो इसे जाया करे उसे इस हक पर कब्जा करने का कोई हक नहीं। फिर वो अचानक पलटा, सख्त कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा और क्लास से दरवाजे के पार रोककर प्रिंसिपल को देखा और सख्त लहजे में बोला, जल्द से जल्द ऐसी नाअहल लड़कियों का दाखिला मनसूख करें और अहल लड़कियों को कॉलेज में दाखिला दें। मेरी मेहनत रायगा नहीं जानी चाहिए। ये बोलकर वो ठहरा नहीं था बल्कि क्लास से निकलता ही चला गया। माही ने अपनी सांसों को काबू में रखने के लिए आंखें बंद कर लीं, मगर उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसने खून आशाम निगाहों से क्लास के दरवाजे को देखा। उसका बस नहीं चल रहा था इस शख्स का लहू पी जाए जिसने चंद लम्हे में ही उसकी इज्जत को खाक में मिला दिया। वो ऐसी ही थी, बेफिक्र, लापरवाही, अपनी जिंदगी को अपनी सोच के मुताबिक गुजारने वाली, मगर वो जानती नहीं थी कि अब उसकी जिंदगी में क्या कुछ तब्दील होने वाला है। ये महज एक मुलाकात नहीं थी बल्कि ये आगाज जंग थी जिससे दोनों ही नावाकिफ थे। कॉलेज की राहदारियों में जैसे ही ब्रेक का ऐलान हुआ, क्लासरूम से लड़कियों के ग्रोह निकलने लगे। कुछ कैंटीन की तरफ बढ़ रही थी, कुछ लॉन में दरख्तों के साए तले बैठने जा रही थी और कुछ अपने मखसूस ग्रुप्स में जमा होकर आज के दिन की चैमगोइयों में मसरूफ हो गई। माहीन अपनी दोस्तों के साथ कैंटीन के करीब एक बेंच पर बैठी थी, मगर आज उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो आमतौर पर हुआ करती थी। उसका जहन अभी भी सुबह होने वाली जिल्लत के गिर्द घूम रहा था। उसकी सबसे करीबी दोस्त हंसी दबाते हुए बोली, वैसे आज तुम्हारी बड़ी बुरी हुई। सरदार फरहाद बलोच ने तुम्हारी जो आज बहुत ही प्यार से इज्जत अफजाई की, सारी जिंदगी मैं भूल नहीं पाऊंगी। सबने एक साथ कह कहा लगाया। उसके साथ बैठी हिना भी साथ देते बोली, कसम से ऐसा लगा जैसे कोई फ्री स्टाइल रैप बैटल चल रही हो। बस तुम्हारी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया। माही ने घूर कर उन दोनों को देखा, मगर वो मजीद मजाक पर उतर आई थी। मैंने तुम्हें मना भी किया था कि मत सो, लेकिन तुम ठहरी हमेशा की ढीठ। कहाँ मेरी बात समझ में आती है तुम्हें? तुम्हें क्या लगा था कि आराम से डेस्क पर सर रख कर सो लोगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा? लेकिन कहती है ना, जब किस्मत खराब हो तो फरहाद बलोच पहुंच जाता है। उसकी बात पर सबका बांग कह कहा बुलंद हुआ। माहीन की उंगलियां सख्ती से मुट्ठी में बंद हो गई। उसके चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी, मगर आंखों में एक अजीब सा अज़म आ गया। तुम लोग मेरा मजाक बना रही हो, उसने धीमे लहजे में कहा, लेकिन आंखों में भड़कते शोले वाज़ेह थे। सिदरा और हिना ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे अंदाजा लगा रही हों कि अब माहीन का पारा चढ़ने वाला है। माहीन ने एक गहरी सांस ली और संजीदगी से बोली, मैंने सब कुछ इसलिए बर्दाश्त किया था क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो मुझे जलील क्यों कर रहा था, मगर अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। जितनी जिल्लत मैंने चंद लोगों के सामने सही, अब वो पूरी बस्ती के सामने सहेंगे। उसके अल्फाज में ऐसी शिद्दत थी कि सिदरा और हिना का हंसी मजाक एकदम रुक गया। अब देखना सिदरा, मैं उनको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये गुरूर, ये रोब सब खाक में मिल जाएगा। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया और आज जो कुछ हुआ ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। सिदरा ने चौंक कर कहा, तुम क्या करने वाली हो?
माहीन की नजरें किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। बस देखती जाओ, सरदार फरहाद बलोच को भी पता चलेगा कि मैं कौन हूं। वो इतना कहकर उठ खड़ी हुई और वहां से निकलती चली गई, जबकि पीछे से सबने परेशान होकर उसको देखा। वो ऐसी ही थी, इज्जत पर बात आ जाए तो वो किसी को छोड़ती नहीं थी, फिर सामने कोई भी क्यों ना हो। हवेली के बड़े दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही फरहाद बलोच ने एक गहरी सांस ली। कॉलेज का दौरा बिल्कुल अच्छा नहीं रहा था। उस एक लड़की ने लम्हे में उसका दिमाग खराब कर दिया। उसके कदम सीधा जनान खाने की तरफ बढ़े, जहां हमेशा की तरह खामोशी और वकार का राज था। अंदर दाखिल होते ही एक मखसूस महक ने उसका इस्तकबाल किया, लौबान की खुशबू जो यहां हमेशा फैली रहती थी। सामने एक कोने में उसकी मां नाजिया बलोच जाए नमाज पर बैठी थी, हाथ बुलंद किए दुआ मांग रही थी। उनका सफेद दुपट्टा पूरे वकार के साथ उनके सर और कंधों को ढांपे हुए था और आंखों में खुशी व खुजू का एक रंग नुमाया था। फरहाद ने एक पल को उन्हें देखा, फिर खामोशी से उनके करीब बैठ गया। चंद लम्हे गुजरे, फिर नाजिया बलोच ने हाथ चेहरे पर फेरे और धीरे से आंखें खोली। जैसे ही उनकी निगाह बेटे पर पड़ी, उनके चेहरे पर मोहब्बत भरी मुस्कुराहट फैल गई। आ गया मेरा बेटा? उन्होंने नरमी से पूछा। जी अम्मा, फरहाद ने सर झुकाकर जवाब दिया, जैसे सारा गुस्सा और सख्ती यहां आकर खुद ब खुद तहलील हो गई हो। आज दिन कैसा गुजरा? काम काज सब ठीक रहा? वो उसके बाल समेटते हुए लाड से बोली। सब ठीक था, बस। फरहाद ने कुछ कहते कहते रुक कर अपनी मां की तरफ देखा। बस क्या बेटा? नाजिया बलोच ने नरम लहजे में पूछा। फरहाद ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, कॉलेज गया था। आज वहां कुछ ऐसी चीजें देखी जो पसंद नहीं आई। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस काबिल नहीं कि उन्हें वो मौके मिलें जो मेहनत करने वालों का हक है। नाजिया ने गौर से बेटे के चेहरे पर देखा, फिर धीरे से बोली, बेटा तुम जिस ओहदे पर हो वहां फैसला करने से पहले तहम्मुल जरूरी होता है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग गलत होते हैं, कुछ नादान और कुछ वक्त के साथ सीखते हैं। अगर तुम्हें लगता है कोई अपना हक जाया कर रहा है तो तुम्हें उसे संवारने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि सिर्फ सजा देने की। फरहाद ने बेचैनी से पहलू बदला। अम्मा, मैंने कभी जुल्म नहीं किया, मगर नाइंसाफी भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। अगर किसी ने मौके की कदर नहीं की तो क्या उसे माफ कर देना चाहिए? नाजिया बलोच ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। माफी देना कमजोरी नहीं होती बेटा, और इंसाफ सख्ती में नहीं बल्कि दानाई में होता है। जो लोग गलत हैं उन्हें सीधा रास्ता दिखाना ज्यादा जरूरी है, ना कि सिर्फ उनकी गलतियों पर गुस्सा करना। फरहाद ने अपनी मां की आंखों में झांका। वहां एक दुनिया की दानिशमंदी थी, एक ऐसा सुकून था जो उसके अंदर के तूफान को थाम रहा था। उसने धीरे से सर हिलाया। आप सही कह रही हैं अम्मा, मैं वादा करता हूं कि अपने फैसले हमेशा इंसाफ से करूंगा। नाजिया बलोच ने मुस्कुराते उसके सर पर हाथ रखा। अल्लाह तुम्हें हमेशा सीधे रास्ते पर रखे बेटा। कभी किसी के साथ गलत मत करना, क्योंकि जो लोग ताकतवर होते हैं उनका हिसाब भी सख्त लिया जाता है। फरहाद ने सर झुका लिया। दिल का बोझ हल्का होने लगा था। मां की बातों में वो सुकून था जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता था। वो बात घुमा गया। अम्मा, भूख लग रही है। जबकि नाजिया बेगम अब उसके संवारे गए बाल बिगाड़ कर किचन की तरफ बढ़ गई थी और वो एक गहरी सांस लेकर रह गया। गांव की पक्की सड़क पर चमकती धूप फैली हुई थी। माहीन कंधे पर बैग डाले सुस्त कदमों से चल रही थी। दिलो दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। वो चाहकर भी उस बेइज्जती को भूल नहीं पा रही थी। रामीन उसके साथ चलते हुए बोली, माहीन तुम इतनी चुप क्यों हो? क्या सोच रही हो? माहीन ने सख्ती से लब भींचे और फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, मैं सोच रही हूं आज शाम 5 बजे मैं फरहाद बलोच के डेरे पर जाऊंगी। रामीन का रंग फक हो गया। क्या तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं, मैं बिल्कुल संजीदा हूं।
माहीन ने मजबूत लहजे में कहा। वो महज 17 साल की थी, लेकिन दिमाग एक समझदार खातून जैसा था। मगर क्यों? वहां जाकर क्या करोगी? रामीन ने जल्दी से पूछा। दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हो रहा था। माहीन तलखी से हंसी। मैं उन्हें धमका कर आऊंगी, उनकी साड़ी अकर खत्म कर दूंगी। वो समझते क्या हैं खुद को? मुझे पूरी क्लास के सामने जलील कर दिया। अब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं भी किसी की बेटी हूं। अगर मैंने उन्हें तिगनी का नाच नहीं नचाया तो मेरा नाम भी माहीन नहीं। वो इस बार शायद हवास खो बैठी थी, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही थी। माहीन, होश में आओ, वो कोई आम आदमी नहीं, फरहाद बलोच है। पूरा गांव उनसे डरता है। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो? रामीन ने घबरा कर कहा। चुप हो जाओ रामीन, तुम तो हो ही डरपोक। माहीन ने हाथ झटक कर कहा। हमेशा यही कहती हो, डरो, कुछ मत करो, मगर मैं डरने वाली नहीं हूं। मैं वहां जाऊंगी और उनके सामने खड़े होकर कहूंगी कि अगर उन्होंने मुझसे माफी नहीं मांगी तो मैं डेरे के बाहर शोर मचा दूंगी। पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा और उनकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। ये पागलपन है माहीन, रामीन ने सख्ती से कहा। यह सब करना तुम्हें बहुत महंगा पड़ सकता है। वो अगर गुस्से में आ गए तो कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं होगा, माहीन ने सर झटका। वो मर्द है ना, तो क्या मर्दों की इज्जत नहीं जाती? जैसे उन्होंने सबके सामने मेरी बेइज्जती की, मैं भी उन्हें लोगों के बीच नीचा दिखाऊंगी। मगर माहीन, रामी ने कुछ और कहने की कोशिश की, मगर माहीन ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। बस फैसला हो चुका है। शाम 5 बजे मैं उनके डेरे पर जाऊंगी और इस बार जीत मेरी होगी और तुम अपनी जबान बंद रखोगी। वो साथ ही साथ उसको भी धमकाते हुए बोली थी। रामीन बेबसी से उसे देखती रह गई, क्योंकि वो जानती थी माहीन एक ऐसा तूफान है जिसको रोकना उसके बस की बात नहीं। कमरे में हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी, जिसका ज्यादातर हिस्सा लैपटॉप की स्क्रीन से आ रहा था। फरहाद बलोच एक हाथ कुर्सी की पुश्त पर रखे, दूसरे से लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर गाढ़े खामोशी से अपना काम कर रहा था। उसका चेहरा संजीदा था। कमरे के अंदर गहरी खामोशी थी। बस कभी कभार उंगलियों की हल्की हल्की टिक टिक की आवाज आती, जो कि बोर्ड पर पड़ रही थी। बाहर सूरज ढल चुका था। खिड़की से हल्की हवा अंदर आ रही थी, मगर फरहाद को इसका कोई एहसास नहीं था। अचानक दरवाजा धड़ से खुला और एक मुलाजिम घबराया हुआ अंदर दाखिल हुआ। फरहाद की नजरें फौरन लैपटॉप से हटी, माथे पर बल पड़े और वो सख्त लहजे में बोला, इजाजत के बगैर अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? मुलाजिम का रंग फक हो गया। वो हकलाते हुए बोला, साहब माफ कीजिएगा, मगर बहुत बड़ा मसला हो चुका है। फरहाद ने सर्द निगाहों से उसे घूरा। बकवास मत करो और साफ साफ बताओ क्या हुआ। मुलाजिम ने एक लम्हे के लिए सांस ली और फिर जल्दी से बोला, इफ्तिखार चौधरी जमीन छोड़ने के लिए राजी नहीं है साहब। हमने उसे हर तरह से मनाने की कोशिश की, मगर वो जिद पर अड़ा हुआ है। बहुत मुश्किल से मैंने शाम के वक्त आपकी उसके साथ मीटिंग तय की है। फरहाद ने आंखें मूंद कर सर कुर्सी से टिका दिया, जैसे कोई बोझ महसूस कर रहा हो। चंद लम्हे खामोश रहकर वो दोबारा सीधा हुआ और सर्द लहजे में बोला, मुझे इस वक्त सुकून चाहिए। आज का दिन मेरा रेस्ट का दिन है। ये सब कल देख लूंगा। मुलाजिम ने घबरा कर एक कदम आगे बढ़ाया। साहब, अगर आज आप नहीं गए तो मसला बिगड़ सकता है। इफ्तिखार चौधरी अपनी बात पर अड़ गया है और उसके आदमी भी सख्त हो रहे हैं। अगर हमने आज कोई कदम ना उठाया तो शायद कल देर हो जाए। फरहाद खामोश रहा, चेहरे पर गहरी सोच के आसार नुमाया हुए। वो अपनी जगह से उठा, कुर्सी धकेल कर पीछे हटा और हाथ पुश्त पर बांधकर कमरे में टहलने लगा। कुछ देर बाद उसने रुककर मुलाजिम की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वही सख्ती थी जो हमेशा मामलात संभालते वक्त आती थी। ठीक है, मैं जाऊंगा, मगर ये आखिरी बार है कि तुम बिना इजाजत मेरे कमरे में घुसे हो। अगली बार दस्तक
देने की जहमत जरूर करना। मुलाजिम ने फौरन सर झुकाकर सर हिलाया। जी साहब, आइंदा ऐसा नहीं होगा। फरहाद ने गर्दन अकड़ाई, अपने चादर कंधे पर दुरुस्त की और गहरी सांस लेते दोबारा लैपटॉप बंद कर दिया। आज का आराम बर्बाद हो चुका था, मगर मामलात सुलझाने के लिए उसे हमेशा तैयार रहना पड़ता था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। शाम 5 बजे माही ने आहिस्तगी से दरवाजे की दर्ज से अंदर झांका। अम्मा नमाज पढ़ने में मसरूफ थीं। सर पर दुपट्टा लिए हाथ दुआ के लिए उठाए। ये बेहतरीन वक्त था। उसने सांस रोकी, दबे कदमों चलती सहन में आई, जूते हाथ में उठाए और दरवाजा हल्का सा खोलकर बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ। शाम का वक्त था, रास्ते काफी सुनसान थे, लेकिन माहीन के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। वो जानती थी कि जो कदम वो उठा रही है वो मामूली नहीं था। वो एक सरदार के डेरे पर जा रही थी, जहां जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। वो खुद को मजबूत जाहिर करने की कोशिश कर रही थी, मगर अंदर एक अनजाना खौफ सर उठा रहा था। मैं ये क्यों कर रही हूं? अचानक उसके दिमाग में सवाल गूंजा। उसने दांत बेंच लिए। इसलिए कि मेरी बेइज्जती हुई है। फरहाद बलोच ने सबके सामने मुझे नीचा दिखाया। अब मैं उसे दिखाऊंगी कि मैं भी किसी से कम नहीं। लेकिन कहते हैं ना, गुस्सा भी बेबुनियाद होता है, बाज़ औक़ात इंसान को तबाह कर देता है। वो तेज तेज कदम उठाने लगी। उसके दिल की धड़कनें रास्ते की खामोशी में मजीद बुलंद महसूस हो रही थी। कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती तो वो एक पल के लिए साकित हो जाती, मगर फिर खुद को झटक कर आगे बढ़ने लगती। कुछ ही देर के बाद वो डेरे के करीब पहुंच गई। दूर से देखने पर वो एक किले की मानेंद लग रहा था। दीवारें ऊंची थीं, बड़े बड़े दरवाजे थे और बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। माहीन रुक गई, तेजी से इर्द गिर्द का जायजा लिया। अगर मैं सीधा दरवाजे से अंदर जाने की कोशिश करूंगी तो पकड़ी जाऊंगी, उसने खुद से कहा। उसकी नजर पिछली दीवार पर गई, जहां एक छोटा दरवाजा मौजूद था। वो मोहतात कदमों से वहां पहुंची और दाएं बाएं देखने के बाद दीवार से लगकर दरवाजे का हैंडल घुमाया। किस्मत अच्छी थी, दरवाजा खुला था। वो जल्दी से अंदर दाखिल हुई और सांस रोके कुछ देर वहीं दीवार के साथ लगी रही, ताकि कोई उसे देख ना ले। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और दबे कदमों आगे बढ़ी। अंदर की रोशनी मध्यम थी। कुछ फासले पर एक बड़ा हॉल नुमा कमरा नजर आया, जहां हल्की सी रोशनी हो रही थी। वो जानती थी कि फरहाद बलोच वहीं कहीं होगा। अब पीछे नहीं हटना, उसने खुद को यकीन दिलाया और मजबूत कदमों से उस मखसूस मेहमान खाने में दाखिल हो गई, जहां वो अपने इरादे को अमली जामा पहनाने वाली थी और यहीं से उसकी जिंदगी तबाह होने वाली थी। फरहाद बलोच की ब्लैक मर्सिडीज डेरे के वसीओ अरीज सहन में आकर रुकी। हेडलाइट्स की तेज रोशनी लम्हा भर को पूरे माहौल को जगमगा गई और फिर बंद होते ही हर शय मध्यम रोशनी में डूब गई। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक लंबा तनावर वजूद बाहर निकला। ब्लैक शलवार कमीज, कंधे पर ढलकी हुई स्याह चादर, चेहरे पर वही सख्ती, वही रोबदार अंदाज जो हमेशा उसकी शख्सियत का हिस्सा था। उसने एक सरसरी नजर डेरे पर डाली और हाथ के इशारे से अपने तमाम मुलाजमीन को वहीं ठहरने का हुक्म दिया। कदम आगे बढ़ाए और करीब खड़े एक मुलाजिम को आवाज दी। जब इफ्तिखार चौधरी और उसके आदमी आए तो उन्हें मेहमान खाने में ले आना। जी साहब, मुलाजिम ने सर झुकाया और फरहाद आगे बढ़ गया। वो सीधा मेहमान खाने के दरवाजे पर पहुंचा। एक लम्हे को रुककर हल्का सा दरवाजा धकेला और अंदर दाखिल हुआ, लेकिन अंदर का मंजर देखकर वो ठुठक गया। सामने कमरे के एक कोने में एक लड़की आराम से बैठी हुई थी, जैसे ये जगह उसके लिए कोई अजनबी ना हो। वो जैसे ही अंदर आया, माहीन अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसको लगा था कि आज उसने आकर बेवकूफ़ी की है, शायद आज फरहाद नहीं आएगा। यही सोचकर वो जाने लगी थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। फरहाद ने सख्त निगाहों से उसको देखा
माथे पर शिकन उभरी और उसने सख्त लहजे में पूछा, तुम कौन हो? यहां कैसे आई? लड़की ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ दुपट्टा कंधे पर दुरुस्त किया और बोली, इतनी जल्दी भूल गए सरदार साहब? सुबह ही तो हमारी मुलाकात हुई थी। फरहाद की नजरें उसके चेहरे पर जमी रहीं, फिर जैसे पहचान कर सर हिलाया। तुम यहां आने की जुर्रत कैसे की लड़की? जानती नहीं हो डेरे पर सिर्फ मर्द आते हैं? माही ने कदम आगे बढ़ाया। आंखों में चमक और लहजे में तलखी थी। जुर्रत तो आपने की थी, सबके सामने मुझे जलील करके। अब मैं दिखाऊंगी कि जिल्लत कैसी होती है। फरहाद ने एक कदम पीछे हटाया, आंखों में हैरानगी दर आई थी। मेरे डेरे पर आकर मुझसे उलझने का अंजाम अच्छा नहीं होगा लड़की। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? माही ने एक और कदम आगे बढ़ी। अब वो बिल्कुल उसके करीब थी, इतने करीब के दोनों के दरमियान सिर्फ चंद इंच का फासला रह गया। उसके चेहरे पर सरकशी थी, आंखों में जिद और फरहाद की सख्त नजरें उस पर जमी हुई थी। मैं अंजाम की परवाह नहीं करती सरदार साहब, वो दांत पीस कर बोली, मगर हां, आपको बहुत जल्द परवाह करनी पड़ेगी। फरहाद की मुट्ठियां भींच गईं। वो लब भींच कर उस सरकश लड़की को देख रहा था जो हर हद पार करने पर तुली हुई थी। वो सरदार था, सब उसकी इज्जत करते थे, उसके आगे झुककर बात करते थे। लेकिन ये कौन थी बदतमीज और बदइखलाक लड़की जो बात को इतना बढ़ावा दे रही थी? अचानक माही ने गुस्से में हाथ बढ़ाया और फरहाद का गिरेबान पकड़ लिया। अपने गरूर में रहने वाले सरदार साहब, अब जरा सोचें, अगर मैं अभी शोर मचा दूं तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आपके लोग आएंगे, देखेंगे कि एक लड़की आपके इतने करीब खड़ी है, आपका गिरेबान पकड़े हुए है, तब आप कहां जाएंगे? फरहाद की नजरें उसके चेहरे पर जमी थीं। उसका जब्त आजमाया जा रहा था। अभी वो कोई रद्द अमल देता, उसी पल बाहर से कदमों की आवाजें उभरी। धड़ से दरवाजा खुला और इफ्तिखार चौधरी के आदमी अंदर दाखिल हुए। माहौल एक पल में बदल गया। फरहाद और माही जो एक दूसरे के इतने करीब खड़े थे, फौरन होश में आए, मगर मंजर कुछ ऐसा था कि कोई भी उसे गलत रंग दे सकता था। इफ्तिखार चौधरी के आदमियों ने अंदर आकर एक पल को रुककर दोनों को देखा और फिर उनकी आंखों में हैरानी और एक अजीब मुस्कुराहट उभरी। माही ने फौरन फरहाद का गिरेबान छोड़ा, मगर अब बहुत कुछ देर हो चुका था। इफ्तिखार चौधरी के कदम जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, उसकी नजरें सामने के मंजर पर जम गईं। फरहाद बलोच का गिरेबान अभी अभी किसी ने छोड़ा था और वो कोई और नहीं, एक नौजवान लड़की थी जो अब कुछ फासले पर खड़ी खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। इफ्तिखार चौधरी ने पहले हैरत से आंखें छोटी की, फिर हल्की सी तंजिया हंसी हंसा। साईं सरकार, वाह, तो आप यहां ये भी करते हैं? दिन भर इलाके में कानून की बातें, इंसाफ के खुतबे और रात को डेरे में मजे। उसके आदमी पीछे खड़े ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे थे, मगर फरहाद बलोच की नजरें खूनख्वार हो चुकी थीं। वो मुट्ठियां भींचकर इफ्तिखार की बकवास सुन रहा था, लेकिन जब्त किए खड़ा था। इफ्तिखार ने जैसे ही नजर घुमाई, उसकी आंखें अचानक हैरत से फैल गईं। वो लड़की, ये चेहरा। वो एक कदम आगे बढ़ा, माथे पर गहरी शिकने डालकर गौर से देखा और फिर बुलंद आवाज में बोला, ओ छोरी, तू यहां क्या कर रही है? तू तो हमारे मुलाजिम नवाजुद्दीन की बेटी है ना? माहिन का दिल धक से रह गया, चेहरे का रंग फक हो गया, सांसें बेतरतीब हो गईं। उसे लगा जैसे जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसके बाप का नाम यहां, इन लोगों के सामने। इफ्तिखार के लफ्जों ने कमरे की फिजा को एकदम बोझल कर दिया। फरहाद ने भी चौंक कर माहिन को देखा, जो अब बुरी तरह बौखला चुकी थी। इफ्तिखार ने मजीद करीब होकर घोरा, बोल, तू यहां क्यों आई? क्या लेने आई थी? माहिन का दिमाग तेजी से चलने लगा। अगर सच बोलती तो क्या होता? बाप को पता चलता, उसका क्या हशर होता? वो जानती थी, और अगर झूठ बोलती तो शायद अपनी इज्जत बचा सकती थी।
اس نے ہمت جمع کی، آنکھوں میں بناوٹی آنسو لاکر سر جھکا لیا اور کانپتی آواز میں بولی، مجھے سردار نے بلایا تھا۔ فرحاد کا سر ایک جھٹکے سے اس کی طرف اٹھا، آنکھوں میں حیرت اور غصہ ایک ساتھ لبکا۔ افتخار چودھری کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ او ہو، تو یہ بات ہے، سائیں سرکار نے خود بلوایا تھا؟ کیا کہہ رہی ہے لڑکی؟ ماہین نے جلدی سے نظریں جھکا لی۔ بس مجھ سے زیادہ مت پوچھیں، پلیز میرے ابا کو مت بتائیے گا ورنہ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ 17 سال کی تھی، اس لیے جتنا دماغ تھا اتنی ہی چال چل رہی تھی۔ افتخار نے ایک بلند کہا لگایا جیسے اسے ایک نایاب ہتھیار مل گیا ہو۔ اس نے اپنے آدمیوں کی طرف دیکھا اور بولا، سنا تم نے؟ یہ سردار صاحب کے کرتوت ہیں، دن بھر علاقے میں شرافت کی باتیں اور رات کو غریبوں کی بیٹیوں کو یہاں بلاتے ہیں۔ فرحاد کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے افتخار کی طرف قدم بڑھایا، مگر افتخار فوراً پیچھے ہٹ گیا اور اونچی آواز میں چلایا، یہ ظلم نہیں چلے گا سائیں، میں پورے گاؤں میں ڈھنڈورا پیٹوں گا، سب کو بتاؤں گا کہ تم کیا کیا کھیل کھیل رہے ہو۔ فرحاد کے چہرے پر تناؤ اور غصہ ابھر آیا۔ وہ مڑا اور تیزی سے ماہین کے قریب آ کر سرگوشی میں بولا، اگر میری عزت پر حرف آیا تو میں تمہاری جان نکالوں گا۔ ماہین نے ساکت ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ واقعی خطرناک حد تک غصے میں تھا۔ فرحاد نے غصے سے پاؤں زمین پر مارا اور افتخار کے پیچھے باہر نکل گیا، جبکہ ماہین وہیں کھڑی لرزتی ہوئی اپنے فیصلے کے انجام کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ تو محض سردار سے مقابلہ کرنے آئی تھی، لیکن اب تو اس کی عزت پر بات آ چکی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ڈیرے کے باہر تیزی سے بھیڑ اکٹھی ہو چکی تھی۔ گاؤں کے لوگ، بزرگ اور چند نوجوان ہاتھ باندھے کھڑے تھے، جبکہ افتخار چودھری عین دروازے کے سامنے کھڑا بلند آواز میں چیخ رہا تھا، یہ ہے تمہارا سردار جسے تم سب عزت دیتے ہو، جو دن کو تمہیں انصاف کا درس دیتا ہے اور راتوں کو ڈیرے میں غریبوں کی بیٹیوں کو بلاتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کچھ چیمو گوئیاں ہونے لگی، کچھ بوڑھے بزرگ ایک دوسرے سے سوالیہ نظروں سے پوچھنے لگے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ فرحاد بلوچ دبے قدموں آگے بڑھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، مگر قدموں میں وہی ٹھہراؤ، وہی دبدبا تھا جو ہمیشہ اس کی شخصیت کا خاصہ رہا تھا۔ وہ افتخار کے عین سامنے آ کر کھڑا ہوا، نظریں سیدھی اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ بہتان باندھنے سے پہلے زبان کو لگام دینا سیکھو افتخار چودھری۔ اس کی آواز گہری اور دھمکی آمیز تھی، مگر افتخار پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ مزید آگے بڑھا اور طنزیہ کہا لگایا، لگتا ہے چوری پکڑی گئی ہے سائی، اب تو زبان بھی کانپ رہی ہے، لیکن زبان کو لگام میں دوں گا نہیں، بلکہ پورے گاؤں کو بتاؤں گا کہ ان کا سردار رات کے اندھیرے میں کن کھیلوں میں لگا ہوا ہے۔ لوگوں کے درمیان سرگوشیاں مزید تیز ہو گئی، کچھ چہرے حیرت میں ڈوب گئے، کچھ تذبذب کا شکار تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے۔ کونے میں جہاں روشنی قدرے کم تھی، ماہین دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو تھے، سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی۔ وہ اس صورتحال کے لیے تیار نہیں تھی، اس نے تو صرف اپنی عزت کا بدلہ لینا چاہا تھا، مگر یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ فرحاد نے گہرا سانس لیا، پھر مضبوط لہجے میں بولا، یہ الزامات جھوٹے ہیں اور میں تمہیں اس جھوٹ کی قیمت چکانے پر مجبور کر دوں گا۔ افتخار چودھری نے ایک اور کہا لگایا، قیمت؟ سائیں قیمت تو وہ لڑکی چکائے گی جسے تم نے اپنے ڈیرے میں بلایا تھا، یا پھر وہ خود آئے اور سب کے سامنے سچ بولے۔ سب کی نظریں ماہین پر جا ٹکی۔ وہ اچانک سہم گئی، دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی۔ اسے لگا جیسے زمین اس کے پیروں کے نیچے سے کھینچی جا رہی ہو۔ بتا چھوری، تو یہاں کیا کرنے آئی تھی؟
افتخار نے زبردستی ہاتھ سے اشارہ کرتے اسے پوچھا۔ ماہین نے جلدی سے سر نفی میں ہلایا، مگر زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ فرحاد نے بھانپ لیا کہ افتخار اب حد سے آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ دھاڑ کر بولا، بس میرے صبر کا امتحان مت لو افتخار، میں نے تمہیں اجازت دی کہ اپنی بات کہو، مگر یہ ہرزہ سرائی نہیں چلے گی۔ افتخار نے ہاتھ باندھے اور مسکرا کر بولا، تو پھر پنچایت بٹھاؤ سردار، دیکھتے ہیں حق پر کون ہے اور جھوٹ پر کون۔ یہ سنتے ہی مجمع میں ایک بھنبھناہٹ پھیل گئی۔ گاؤں کے چند معزز بزرگ آگے بڑھے اور پنچایت کے لیے انتظامات کرنے لگے۔ فرحاد نے ایک نظر ماہین کی طرف دیکھا جو دیوار کے ساتھ سمٹی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر اذیت اور خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی ضد اسے اتنی بڑی مصیبت میں ڈال دے گی، جبکہ فرحاد بھی اب صحیح معنوں میں پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک لڑکی کی عزت بھی داؤ پر لگ رہی تھی، اسی لیے وہ حد سے زیادہ پریشان ہو گیا۔ بڑے میدان میں اسی وقت پنچایت بٹھا دی گئی۔ سب کچھ لمحوں میں طے پایا تھا۔ گاؤں کے معززین، بزرگ اور معتبر لوگ فرحاد بلوچ کے گرد حلقہ بنائے بیٹھے تھے، جبکہ افتخار چودھری کرسی پر پاؤں بسارے مزے سے سگریٹ سلگا چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آج کا دن اس کے نام ہوگا۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ پوری جیت اسے ایسے ہاتھ میں آ جائے گی۔ یہ کیا ماجرا ہے فرحاد بلوچ؟ ایک بزرگ نے سخت نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سردار ہونا اپنی جگہ، مگر یہ اختیار کسی نے نہیں دیا کہ کسی غریب کی بیٹی کو ڈیرے پر بلا کر اس کی عزت پر حرف آ جائے۔ فرحاد نے گہرا سانس لیا، ضبط کیا اور ہاتھ باندھ کر بولا، یہ سب ایک غلط فہمی ہے۔ میں نے غلط فہمی؟ افتخار چودھری نے بیچ میں ہی کہا مار کر کہا، سائیں غلط فہمی ہوتی ہے گلی میں کسی سے کندھا ٹکرانے کی، ڈیرے میں راتوں کو کسی کی بیٹی بلا کر اسے غلط فہمی نہیں کہتے۔ فرحاد کی مٹھیاں بھینچ گئیں۔ وہ ضبط سے اپنی جگہ کھڑا تھا، مگر چہرے پر غصے کی ایک لہر واضح تھی۔ پھر اچانک اس کی نظر ماہین پر گئی جو اب تک خاموش کھڑی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، مگر چہرے پر وہی ضد اور وہی غرور۔ فرحاد نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ آواز اتنی دھیمی تھی کہ صرف ماہین ہی سن پائی۔ میں تمہاری جان نکال لوں گا لڑکی، تمہاری وجہ سے آج میں اس دوراہے پر کھڑا ہوں۔ ماہین نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر ہونٹ بھینچ کر بولی، پورا گاؤں آپ سے ڈرتا ہوگا لیکن میں نہیں ڈرتی سردار صاحب۔ چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ حیران ہو کر ماہین کی طرف دیکھنے لگے۔ افتخار چودھری نے چونک کر اسے دیکھا، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ ایک لڑکی نے فرحاد بلوچ کے سامنے کھڑے ہو کر ایسا کہا ہے۔ ماہین نے قدم آگے بڑھایا اور مضبوط لہجے میں بولی، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، یہ افتخار لالا جو کہہ رہے ہیں سب جھوٹ ہے، ہمارے درمیان کچھ نہیں ہو رہا تھا، بس ایک غلط فہمی تھی، اور یہ سب اس غلط فہمی کو الزام بنا کر اچھال رہے ہیں۔ وہ ایک دم بھڑک اٹھی تھی۔ فرحاد کے اندر کچھ کھول کر رہ گیا۔ یہ لڑکی اتنی مضبوط کیسے ہو سکتی تھی؟ پورے گاؤں کے سامنے، سینکڑوں مردوں کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اس کی آواز میں کپ کپاہٹ تک نہیں تھی۔ افتخار چودھری نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دیکھو ذرا کتنا اعتماد ہے اس چھوری میں، واہ واہ۔ فرحاد نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ وہ جانتا تھا اگر اس نے اس الزام کو دھونے کی کوشش کی تو افتخار مزید کیچڑ اچھالے گا۔ اسے بس ایک ہی حل نظر آیا، ایک ایسا حل جو سب کو خاموش کر دے گا، ایک ایسا حل جو کسی کو بھی مزید بات کرنے کی ہمت نہیں دے گا۔ اس نے آگے بڑھ کر مجمع پر نظر دوڑائی اور گہری سانس لے کر بولا، اگر میں نے اس لڑکی کی عزت پر حرف ڈالا ہے تو اب میں ہی اسے عزت دوں گا۔ لوگ ساکت ہو گئے۔ فرحاد نے ایک نظر ماہین پر ڈالی جو حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ پنچایت میں سناٹا چھا گیا، سب بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔
फरहाद बलोच गांव का सरदार और एक मुलाजिम की बेटी से निकाह? हैरानगी बजा थी। नहीं, ये निकाह नहीं हो सकता। माहिन की बुलंद आवाज पंचायत में गूंजी तो लोग हैरत से उसे देखने लगे। वो पूरी ताकत से अपना बाजू झटक कर पीछे हुई और फरहाद बलोच को घूर कर बोली, ये कैसे हो सकता है? मैं इनसे बहुत छोटी हूं। हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं था। ये महज एक गलत फहमी है। फरहाद खामोशी से उसे देख रहा था। उसकी नजरों में वही सख्ती थी, वही ठहराव, मगर माहिन को यूं बिफरते देखकर उसके लबों पर एक सर्द मुस्कुराहट आ गई। बेटा, ये फैसला अब तुम्हारे हाथ में नहीं, एक बुजुर्ग ने रिसान से कहा। जो होना था वो हो गया। अब इज्जत बचाने का यही एक रास्ता है। ये इंसाफ नहीं है। माही ने बेबसी से गर्दन घुमाई। सब चेहरों को देखा, मगर किसी की आंखों में उसके लिए नरमी नहीं थी। गांव के लोग खामोश तमाशाई बने खड़े थे, जैसे उनके लिए एक आम सी बात हो। ये फैसला हो चुका है, एक और बुजुर्ग बोले। तुम्हारी इज्जत का सवाल है, तुम्हारे माँ बाप की इज्जत का सवाल है। अगर तुम्हारी शादी फरहाद बलोच से हो जाए तो ये मामला खत्म हो जाएगा। माहिन की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने एक आखिरी उम्मीद भरी नजर फरहाद की तरफ डाली, मगर उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, जबकि इफ्तिखार के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थीं। यहां तो पूरी बाजी ही पलट गई थी। निकाह ख्वां आगे बढ़ा। पंचायत में चमगोइयां होने लगी। सबके चेहरों पर एक संजीदगी छा गई। जैसे ही निकाह के अल्फाज अदा किए जाने लगे, माहिन ने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर सब बेसूद रहा। कबूल है। माहिन का दिल लरस कर रह गया। वो जानती थी अगर उसने इनकार किया तो नताइज बदतर हो सकते हैं। उसने एक आखिरी नजर पंचायत पर दौड़ाई और फिर बेबसी से सर झुकाकर बमुश्किल सरगोशी की। कबूल है। फरहाद बलोच के लबों पर एक सख्त मुस्कुराहट दर आई। उसने भी बुलंद और दो टोक लहजे में 3 बार कहा, कबूल है, और निकाह मुकम्मल हो गया। इफ्तिखार चौधरी का चेहरा उस वक्त देखने वाला था। वो जैसे सकते में था। उसका पूरा मंसूबा पलट चुका था। वो तो चाहता था कि फरहाद बलोच की इज्जत खाक में मिले, मगर उसने तो सारा मामला अपने हक में कर लिया। उसी लम्हे शोर बुलंद हुआ। पंचायत के किनारे पर एक मर्द और औरत बदहवासी में आगे बढ़े। ये क्या हो गया? नवाजुद्दीन की कपकपाती आवाज गूंजी। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसकी बीवी ज़ारो कतार रो रही थी। हमारी बेटी। उनकी जबान साथ नहीं दे रही थी। माही ने अपने वालिदैन को देखा तो उसका जब्त टूटने को था, मगर अब सब कुछ खत्म हो चुका था। उसकी महज एक गलती सब तबाह कर गई थी। फरहाद बलोच आगे बढ़ा, माहिन का हाथ थामा और किसी को एक पल का भी मौका दिए बगैर सीधा अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। माही ने सर झटक कर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर उसकी गिरफ्त आ ही नहीं थी। छोड़े मेरा हाथ, वो सरगोशी में गुर्राई। अब यह हाथ पकड़ लिया है तो हमेशा के लिए पकड़ लिया है। फरहाद ने सख्ती से जवाब दिया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे अंदर धकेल दिया। माही ने अपने आंसू जब्त कर लिए और गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा। उसका घर, उसके माँ बाप, सब कुछ पीछे रह चुका था। गाड़ी फरहाद बलोच की हवेली की तरफ रवाना हो चुकी थी। एक मुख्तसर मुसाफत के बाद हवेली आ गई। गाड़ी एक झटके से पोछ में रोकी। वो गुस्से से बाहर आया और खींचकर उसको बाहर निकाला और घसीटकर हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ा। मगर जैसे ही दरवाजा धड़ाक से खुला, सबकी नजरें एक साथ उस सिमत उठी। फरहाद बलोच के चेहरे पर तूफान उमड़ आया था और उसके पीछे एक नाजुक सी लड़की जो बमुश्किल उसकी रफ्तार का साथ दे रही थी। उसकी कलाई सख्ती से फरहाद के आहिनी हाथ में जकड़ी हुई थी। ये क्या हो रहा है? अम्मा बेगम ने हैरत से उठते पूछा। फरहाद, ये लड़की कौन है? चाचू ने भवें चढ़ाई, मगर फरहाद ने किसी को कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा। वो बिना किसी की परवाह किए
तेज कदमों से आगे बढ़ा और सीधा अपने कमरे की तरफ निकल गया। कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाजा धड़ाम से बंद किया और एक ही झटके में माहीन को जोर से जमीन पर पटक दिया। वो घबराकर पीछे हटी। उसका दिल धक धक करने लगा था। वो बेहद खौफजदा हो गई थी। फरहाद ने नीचे झुककर उसे बाजू से खींचा और गुर्राया। क्या कहा था तुमने कि पूरा गांव मुझसे डरता होगा मगर तुम नहीं डरती? माहीन की आंखों में खौफ के साए लहराने लगे, मगर उसने नजरें नीची नहीं की। मेरा वादा है, आज रात के बाद तुम मेरे नाम से भी कांपोगी। फरहाद की आवाज में वहशत थी। माही ने जल्दी से पीछे हटना चाहा, मगर उसकी गिरफ्त आ ही नहीं थी। अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं। माही ने हिम्मत करने की बोलने की कोशिश की, मगर उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही फरहाद ने अपनी गिरफ्त मजीद सख्त कर दी और अपने लब उसकी गर्दन पर रखे। वो सिर्फ 17 साल की थी। उसके नजदीक ये सब बहुत खौफनाक था। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू तैरने लगे। फिर वो जोर जोर से रोने लगी। फरहाद लम्हे भर के लिए रुका। उसके सामने वही तेज तरार लड़की जो कुछ देर पहले तक सबके सामने खड़ी अपनी बेगुनाही का ऐलान कर रही थी, अब जमीन पर बैठी रो रही थी। मैं कुछ करने नहीं आई थी, माही ने सिसकियां लेते कहा। मैं तो सिर्फ आपको धमकाने आई थी कि मैं वो आम लड़की नहीं जिसे आप जलील कर सकें। फरहाद की मुट्ठियां भींच गईं। मैं कसम खाकर कहती हूं मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो अपने लरसते हाथ जोड़ते हुए बोली। फरहाद ने सख्ती से उसे घूरा। उसकी आंखों में बेयकीनी थी, गुस्सा था, मगर कहीं ना कहीं कुछ और भी था जो शायद वो खुद भी समझने से कासिर था। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। चंद लम्हों बाद फरहाद ने एक झटके से उसका बाजू छोड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ, वो सख्त लहजे में बोला और फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। माही ने नम आंखों से उसे जाता देखा और सिसकते हुए जमीन पर गिर गई। आज की रात उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक ख्वाब बन चुकी थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। जिंदगी बहुत तंग हो गई थी। 2 हफ्ते गुजर चुके थे। हवेली में जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी, मगर माहीन के लिए ये 2 हफ्ते किसी कैद से कम नहीं थे। फरहाद बलोच का सख्त और बेरहम रवैया, उसकी तेज नजरें और वो हर वक्त का बेजारी भरा अंदाज, सब कुछ उसे अंदर से तोड़ रहा था। वो एक ऐसी जिंदगी में कैद हो चुकी थी जहां ना कोई उसका हमदर्द था और ना कोई उसके आंसू पोंछने वाला। आज भी ऐसा ही एक दिन था। सूरज ढल रहा था। कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। माहीन जमीन पर बैठी खामोशी से एक मर्दाना सूट पर सुई चला रही थी। ये मसरूफियत उसका आखिरी सहारा थी जिसमें वो अपने दिन काट रही थी। दरवाजा खुला और फरहाद बलोच अंदर दाखिल हुआ। माहीन की उंगलियां लरस गईं और वो तेजी से अपनी जगह खड़ी हो गई। उसका सर झुका हुआ था और आंखें खौफ से फैली हुई थी। मगर आज का दिन बाकी दिनों जैसा नहीं था। आज फरहाद के चेहरे पर सख्ती के बजाय अजीब सी मुस्कुराहट थी। एक फातिहाना चमक उसकी आंखों में थी। क्या कर रही थी? उसने सरसरी अंदाज में पूछा, जैसे वो वाकई में जानना चाह रहा हो। वो कुछ नहीं, माहीन की आवाज लरस गई। फरहाद आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और एक नजर सूट पर डाली, फिर एक नजर उसकी सहमी हुई शक्ल पर। अब भी इतना डरती हो मुझसे? वो तंजिया मुस्कुराया। माही ने कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर अल्फाज अंदर ही कहीं दब गए। फरहाद बलोच ने एक लम्हे के लिए उसकी तरफ गौर से देखा, फिर अचानक वही पुराना तेज अंदाज अपनाते बोला, आओ बैठो यहां। माहीन का दिल जोर से धड़का। बैठो, फरहाद ने फिर सख्ती से कहा। वो कांपते हुए उसके करीब सोफे पर बैठ गई। फरहाद ने उसे कुछ लम्हे खामोशी से देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, पता है, तुम्हारी जिद, तुम्हारा गुस्सा मुझे वैसा ही लगा जैसा मैंने बरसों पहले खुद अपने अंदर महसूस किया था। माही ने हैरानी से नजरें उठाईं। तुम्हें क्या लगता होगा कि मैंने तुमसे निकाह सिर्फ तुम्हें नीचा दिखाने के लिए किया? मगर ऐसा नहीं था। फरहाद ने गहरी सांस ली।
افتخار چودھری میری زمینیں ہڑپنا چاہ رہا تھا اور اس نے سوچا مجھے بدنام کر کے میرا اختیار ختم کر دے گا، مگر میں نے وہی چال اس پر الٹ دی۔ پنچایت میں نکاح کی پیشکش کر کے میں نے اسے خاموش کروا دیا اور پھر بزرگوں کے سامنے ثابت کیا کہ اگر وہ مجھے زمین واپس نہیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ سب اس کی ذاتی دشمنی ہے، اور بزرگوں نے فیصلہ میرے حق میں دے دیا۔ ماہین کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی جتنا تم سمجھتی ہو ماہین، فرحاد نے سنجیدگی سے کہا۔ غصے میں فیصلہ کرنے والے ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں، تم نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ تم نے میرے ڈیرے پر آ کر اپنی عزت کو خطرے میں ڈالا اور پھر خود کو اس پنچایت میں کھڑا پایا جہاں تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ ماہین کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ لیکن میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، وہ بے بسی سے بولی۔ فرحاد نے دھیرے سے سر ہلایا۔ شاید نہیں، لیکن تمہارا طریقہ غلط تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ فرحاد نے نرمی سے ماہین کا ہاتھ تھاما جس پر اس کی انگلیاں لرزنے لگیں۔ میں برا آدمی نہیں ہوں ماہین، میں وڈیرا ہوں مگر ظالم نہیں۔ میں نے تم سے زبردستی نہیں کی اور نہ ہی کروں گا، مگر تمہیں سیکھنا ہوگا کہ طاقت اور ضد ہمیشہ ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتی، اور یہ بات میں ایک سردار ہو کر بول رہا ہوں۔ ماہی نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تمہیں وقت دوں گا سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ میں تمہیں توڑنا نہیں چاہتا، بلکہ تمہیں وہ ہمت دینا چاہتا ہوں جو واقعی کسی لڑکی کو مضبوط بنا سکے۔ یہ الفاظ، یہ نرم لہجہ ماہین کے لیے سب کچھ نیا تھا۔ وہ شخص جسے وہ اب تک صرف ظالم اور سخت گیر سمجھ رہی تھی، اس کا ایک مختلف پہلو سامنے آیا تھا۔ فرحاد نے اس کا ہاتھ آہستہ سے چھوڑ دیا، پھر کھڑا ہوا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ نکاح تمہارے لیے سزا نہیں ہے ماہین، یہ تمہارے لیے ایک نیا موقع ہے، جینا سیکھنے کا، سمجھداری سے فیصلے کرنے کا۔ اور پھر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، جبکہ ماہین وہیں بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ آج پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ شاید وہ اتنی اکیلی نہیں تھی جتنا وہ سمجھتی تھی، اور پھر واقعی فرحاد نے اسے ہمت دی تھی۔ وہ اس لڑکی میں اپنا آپ دیکھتا تھا۔ پوری پنچایت میں کھڑے ہو کر اپنے حق میں بولنا اسے اسی دن اس پر مائل کر چکا تھا، اور پھر چند دنوں بعد اس نے دھوم دھام سے اسے اپنے نکاح میں لے لیا۔ بڑے پیمانے پر ولیمہ منعقد کیا گیا۔ وہ فرحاد بلوچ تھا، کسی معصوم پر ظلم کرنا اس کو پسند نہیں تھا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔